حضرت ابو ذر غفاری نے واقعہ معراج یوں روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے، جب میں مکے میں مقیم تھا، جبریل امین علیہ السلام چھت کھول کر چھت پھاڑ کر میرے گھر میں آئے۔ انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اسے آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا ایک تھال لائے جس میں ایمان اور حکمت بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیے اور اسے جوڑ دیا۔ پھر میرے ہاتھ تھام کر مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میرے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا ایک قدم حد نگاہ تک جاتا تھا۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور آسمانی دنیا تک آ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبریل امین علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا؟ جواب دیا ہاں، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، خوش آمد کہا گیا اور استقبال کے کلمات کہے گئے۔ یہاں ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ امام مسلم کہتے ہیں اس کے بعد پورا واقعہ ہے۔ اس میں یہ بات مذکور ہے کہ دوسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہاں سے چل کر ہم چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا صالحہ بھائی کہ نیک بھائی کو خوش آمدید۔ جب میں وہاں سے آگے جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ غیب سے آواز آئی، رو کیوں رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے، اے میرے پروردگار، ان صاحب کو تو نے میرے بعد معبوس کیا، لیکن میری امت کے افراد سے زیادہ تعداد میں ان کی امت کے افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ وہاں سے چل کر ہم 7ویں آسمان پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے 4 نہریں دیکھی جو ایک ہی مقام سے نکلتی ہیں۔ ان میں سے 2 نہریں ظاہر تھی اور 2 نہریں باطنی تھی کہ چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دریافت کیا، جبریل یہ کون سی نہریں ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ بیت العمور ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ باہر آ جائے انہیں دوبارہ کبھی بھی اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے۔ ایک برتن میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ مجھے بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فطرت دین اسلام پر ثابت قدم رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھ پر روزانہ کی 5 نمازیں فرض کی گئی۔ سدرہ منتہا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے سدرہ منتہا تک لے جایا گیا۔
इसके पत्ते हाथी के कान के मानत थे, इसके फल मटकों के मानत थे। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत इसे अनवार ने ढांप लिया और वो इतना खूबसूरत हो गया कि मखलूक का कोई फर्द भी इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाज़िल की और इसके हमवार रोजाना 50 नमाजों का हुक्म दिया। वापसी पर जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि आपके परवरदिगार ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? मैंने जवाब दिया, रोजाना की 50 नमाजें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आप दोबारा परवरदिगार की बारगाह में जाएं और नमाजों की तादाद में कमी करें, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। मुझे नमाजों के हवाले से बनी इसराइल का तजर्बा हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वापस अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ मेरे रब, नमाजों की तादाद के हवाले से मेरी उम्मत को आसानी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। जब मैं वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, आपकी उम्मत इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकती कि पढ़ नहीं सकेगी, इसलिए आप दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हों और मजीद कमी की दरखास्त करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बार बार अपने परवरदिगार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान चक्कर लगाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजाना 5 नमाज फर्ज की जाती हैं। इनमें से हर नमाज का सवाब 10 गुना होगा। अजर और सवाब के एतबार से ये कुल 50 नमाजें हो जाएंगी। तुम्हारी उम्मत को ये इनाम भी अता किया जाता है। जो शख्स एक नेकी का पुख्ता के पक्का इरादा करे और इस पर अमल ना करे तो भी उसे एक नेकी का सवाब मिलेगा, और अगर वो इस पर अमल कर ले तो उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स एक गुनाह का इरादा करने के बावजूद इस पर अमल ना करे, कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, और अगर वो उस पर अमल करे तो एक गुनाह ही लिखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहां से चलकर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्हें हुक्म की इतला दी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, आप दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में जाएं, मजीद कमी की दरखास्त करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जवाब दिया, अब मुझे दोबारा अपने परवरदिगार की तरफ जाते हुए हया आती है कि 9 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के दरमियान चक्कर लगाते रहे। ये क्या था? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अपने पास बुलाना था। अल्लाह ताला भी जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 50 नमाजें अदा नहीं कर सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैं हतीम में खड़ा हुआ था, कुरैश मुझसे मेरे सफरे मराज के बारे में सवालात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बैतुल मुक़द्दस की कुछ निशानियों के बारे में पूछा जिनकी तरफ मैंने तवज्जो ही नहीं की थी, कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था जो मुझसे बैतुल मुक़द्दस की निशानियां पूछ रहे थे। मैं बहुत उलझन का शिकार हुआ, इतनी उलझन मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने कर दिया। कुरैश मुझसे इसके बारे में जो भी पूछते मैं उन्हें बता देता। सफर मिराज के दौरान मैंने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भी देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा। अब के बाल गुराले यानी कुंडलों वाले थे।
यूं जैसे शुनुआ कबीले के लोगों के हुआ करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज पढ़ते हुए देखा। अरूबी मसूद सकफा का शक्ल व सूरत आपसे बहुत मिलती है। मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नमाज पढ़ते हुए देखा। वो तुम्हारे आका यानी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। फिर बाद जमात नमाज अदा होने लगी। मैंने इन तमाम हजरात को नमाज पढ़ाई। नमाज से फारग होने के बाद किसी ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक मालिक हैं जहन्नम के अचार्ज, आप इसे सलाम कीजिए। मैं इसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो उसने पहले ही मुझे सलाम कर दिया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें अता की गई। 5 नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी आयत और ये खुशखबरी कि आप की उम्मत का जो शख्स शिरक ना करे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो उसे बख्श दिया जाएगा। शबानी कहते हैं कि मैंने जरीन जज से अल्लाह ताला के इस फरमान का मतलब दरियाफ्त किया, बस वो कमान के 2 कोनों की मानद करीब हो गए या इससे भी ज्यादा करीब हुए। जर ने जवाब दिया, मुझे इब्ने मसूद रजी अल्लाह ने बताया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा तो उनके 600 पर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह बयान करते हैं, कुरान पाक की ये आयत जिसका तर्जुमा ये है, उन्होंने जो देखा उनके दिल ने इसे झुठलाया नहीं। इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखना। उस वक़्त उनके 600 पर थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कुरान पाक की आयत जिसका तर्जुमा ये है, उनके दिल ने जो देखा उसे झुठलाया नहीं। उन्होंने उससे दोबारा भी देखा कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को 2 मर्तबा अपने दिल की आंखों के जरिए देखा। अल्लाह ताला को देखना। मसरूक बयान करते हैं, हजरत आशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर था और टेक लगा कर बैठा हुआ था। आपने फरमाया, ए अबू आशा मसरूक, जो शख्स 3 बातों में से कुछ एक बात का भी कायल हो वो अल्लाह ताला की तरफ बहुत बड़ा झूठ मंसूब करेगा। मैंने पूछा, वो 3 बातें कौन सी हैं? हजरत आशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इस बात का कायल हो के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार को देखा है तो वो अल्लाह ताला की तरफ एक नहायत गलत बात मंसूब करेगा। मसरूक कहते हैं, मैं टेक लगा कर बैठा हुआ था, अब सीधा होकर बैठ गया और बोला, उम्मुल मोमिनीन, आप इस बात पर गौर करें और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। क्या अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाया, इसने उसे रोशन उफ़क़ के रोशन आसमान में देखा, और ये भी फरमाया है फिर उसे दूसरी मर्तबा भी देखा। पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इससे मुराद हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम है कि मैंने अल्लाह ताला को नहीं देखा, मैंने 2 दफा जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को देखा है उनकी असल हालत में, क्योंकि मैंने उनको उनकी असल सूरत में उन्हें 2 मौके पर देखा है। एक उस वक्त मैंने देखा जब वो आसमान से नीचे उतर रहे थे, उसके बाद उसके वजूद ने जमीन और आसमान पर खलल को भर दिया था। मसरूक कहते हैं, सईदा आशा रज़ी अल्लाह ने मुझसे कहा, क्या तुमने अल्लाह ताला की ये फरमान नहीं सुना? आंखें उसका इतराफ नहीं कर सकती है, लेकिन उसने आंखों का अहाता किया हुआ है और वो बरीक बीन से बाखबरदार है कि अल्लाह ताला, क्या तुमने अल्लाह ताला के ये फरमान भी नहीं सुना? किसी बशर में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला वही के बगैर उससे कलाम करे, या फिर वो हिजाब के पीछे
हो या अल्लाह ताला पास फरिश्ता भेज दे, बेशक वो अल्लाह ताला बुलंद तर और हिकमतों वाला है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जो शख्स इस बात का कायल हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की किताब का कुछ हिस्सा छुपा लिया था, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी गलत बात मंसूब करता है। जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए रसूल, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर जो नाज़िल किया गया इसकी तबलीग करो। अगर तुमने ऐसा ना किया, कि अगर तुमने तबलीग ना की तो रसालत के फरीज़े को सही तौर पर सर अंजाम नहीं दिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जो शख्स ये समझता हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता सकते हैं कि कल क्या होगा, तो वो शख्स भी अल्लाह ताला की तरफ से नहायत गलत बात मंसूब करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला के सिवा ज़मीन आसमान में मौजूद कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता। हज़रत अबू मूसा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हमें 4 बातें बताई। नंबर 1, अल्लाह ताला सोता नहीं है और सोना उसकी शान के लायक भी नहीं है। दूसरी बात, वो मीज़ान के पल्लों को झुकाता भी है और उन्हें उठाता भी है। तीसरी बात, रात का अमल सुबह होने से पहले, वो दिन का अमल रात होने से पहले उसकी बारगाह में पेश हो जाता है। चौथी बात, जिसका हजाब नूर है और एक रवायत के मुताबिक आग है, अगर उसके हजाब को हटा दिया जाए तो उसकी जात के अनवार तमाम मखलूक को जला देगी। अल्हम्दुलिल्लाह।